Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Prime Skills once again. So आज हम लेक्चर नंबर 9 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लिसनिंग स्किल्स यूजिंग टेड टॉक। और इससे पहले भी हम अराउंड 8 लेसन्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उन सेशंस को नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन सेशंस को देखें एंड देन यू शुड कम हियर। ऑल्सो इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रियली वेल, मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड पॉइंट so that you can grab the entire information. Another important part, my dear students, if you have not subscribed the channel yet, make sure that you subscribe the channel and hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications related to all the videos which I am posting here. Okay, so I do not, once again, for your understanding, let me tell you that I do not post only the videos related to your curriculum. I post videos related to your vocabulary, your communication skills, your spoken English skills, your personality development, soft skills, interview preparation, group discussion. So a lot of videos are about to come on this you can say channel, and believe me, this channel is actually going to become a very important partner in your understanding, in your personality development. So if you really want to establish yourself as a good communicator and if you really want to improve your personality, make sure that you hit the bell icon and you get the notifications of all the videos I'm posting out here. So without much ado, let's go ahead and start our session for today, that is listening skills using TED Talk. So our today's session is listening skills using TED Talk. TED Talk के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो I'll just tell you in next 2 slides. Don't worry about it. This is lecture number 9 और lecture 9 से पहले हम 8 lecture पहले ही complete कर चुके हैं. तो please make sure कि आप उनको जरूर देखें. And this is the code BAS 105205 new syllabus of AKTU first year. And this syllabus was actually released in November 2022 and we expect the syllabus to be completed by 31st of January 2023. So make sure that you are absolutely connected and you are getting all the videos and watching all of them. So let's go ahead and start our today's session. So today's session is listening skills using TED Talk, audio listening with the script reading, etc. And today we are going to complete this chapter or this lesson. So listening skills using और listening technique using TED Talk. तो सबसे पहले हम TED Talk के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं बच्चों की. TED Talk है क्या? Basically TED Talks are the talks delivered by the experts of variety of domains from all around the world. अगर आपने आज तक TED Talk नहीं देखी है तो believe me आप बहुत पीछे चल रहे हैं, because TED Talk बहुत पॉपुलर है. YouTube चैनल की तरह जैसे YouTube होता है, बिल्कुल इसी तरीके से TED Talk भी एक पोर्टल है जहां पे कि जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं, अपने अपने डोमेन के स्पेशलिस्ट लोग जो होते हैं, वो बेसिकली वहां पे स्पेशल टॉक्स देते हैं, बहुत ही फॉर्मल, बहुत ही आई शुड से वेरी वेरी एक्सक्विजिट सॉर्ट ऑफ डिफरेंट टॉक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपने कम्युनिकेशन को, अपनी लैंग्वेज स्किल्स को, अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो टेड टॉक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर यू. तो टेड टॉक सीधे www.ted.com पे जाके आप देख सकते हैं और कोई भी आप वहां पे जो है टॉक को देखना शुरू कर सकते हैं. एवरी टॉक इज awesome, right? So from every talk you will definitely understand something. So these talks are highly formal in nature, feature amazing speakers not only with expertise in their respective domain but also with impactful public speaking skills, competent communication skills and command over their verbal and non-verbal skills. यानी ऐसे जो लोग होते हैं जिनके खुद के कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत अच्छी कमांड होती है, वर्बल नॉन वर्बल स्किल्स पे बहुत अच्छी कमांड होती है और पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छी कमांड होती है, ऐसे लोग वहां पे आते हैं. ऐसे लोगों से लर्न करने का अपना ही अलग मजा होता है. और ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक वर्ल्ड क्लास स्पीकर बनना चाहते हैं, कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो टेड टॉक्स को देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Since TED Talk feature experts with different accents, style and the ways of communication, watching and listening TED Talks available at www.ted.com can be immensely helpful for improving verbal and non-verbal communication skills and listening skills. तो अगर आप verbal और non-verbal communication skills को improve करना चाहते हैं या listening skills को improve करना चाहते हैं तो TED Talks को जरूर देखिए. These are very very wonderful talks. इंप्रूविंग लिसनिंग स्किल्स यूजिंग टेड टॉक. तो अगर आप टेड टॉक के माध्यम से लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम अपना डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं. तो नंबर 1, लिसन विद क्लियर ऑब्जेक्टिव इन माइंड. नंबर 2, लिसन विद नो डिस्ट्रैक्शन. नंबर 3, ऑब्जर्व मेटा कम्युनिकेशन. Number 4, listen with notebook and pen in hand, make notes. Number 5, use subtitles on off switch. And number 6, reduce, rephrase, recite and reflect. तो आइए एक एक करके इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं जिससे कि हमें पता लग जाए कि हम अपने लिसनिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं टेड टॉक के माध्यम से.
सो नंबर वन, लिसन विद क्लियर ऑब्जेक्टिव इन माइंड। सबसे पहले आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम तो इंग्लिश की बहुत सारी मूवीज देखते हैं लेकिन हमारी वोकैबुलरी, हमारा इंग्लिश जो है स्पीकिंग या स्पोकन इंग्लिश हमारी इंप्रूव नहीं हो रही है। उसका रीजन ये होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव होता है मूवी को एंजॉय करना, और जब आप मूवी को एंजॉय करने के ऑब्जेक्टिव से देखते हैं तो आप उसकी वोकैबुलरी, उसके फ्रेजेस पे ध्यान नहीं देते हैं, आप उसके मीनिंग पे ध्यान देते हैं, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देते हैं, आपको केवल एंजॉयमेंट पे ध्यान होता है। और जब आप केवल एंजॉयमेंट पे ध्यान देंगे, वर्ड्स, फ्रेजेस, ये सब आपके दिमाग में आएंगे ही नहीं, आप उन पे ध्यान ही नहीं देंगे। तो पहली बात तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर आप मूवी देख रहे हैं या अगर आप टेड टॉक देख रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मैं आज इस स्पीकर के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे ध्यान दूंगा कि कौन कौन से नॉन वर्बल क्यूज यूज कर रहा है अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि मैं आज इसके वर्ड्स पे ध्यान दूंगा। एक ही टेड टॉक को आप 5 अलग अलग दिन तक देख सकते हैं और पांचों अलग अलग दिन अलग अलग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से अलग अलग ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के देख सकते हैं। यू विल ऑलवेज बी लर्निंग अ लॉट मेनी थिंग्स। कुछ लोगों को क्वांटिटी पे विश्वास होता है कि वो बहुत सारी टेड टॉक हमने देख ली, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी टेड टॉक देखी या कितनी मूवीज देखी। फर्क इस बात से पड़ता है कि किस ऑब्जेक्टिव के साथ देखी। तो प्लीज आज के बाद ये कहना बंद कर दीजिए कि सर मैं तो बहुत सारी इंग्लिश मूवीज देखता हूं तब भी मेरी वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं हो रही है, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग द वोकैबुलरी। अगर आपका इंग्लिश मूवी देखने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एंजॉय करना है तो आप एंजॉय करके खत्म करेंगे, राइट। तो इसी तरीके से टेड टॉक देखते हुए भी आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप अपने वर्बल कम्युनिकेशन के लिए देख रहे हैं, नॉन वर्बल के लिए देख रहे हैं, उसके एक्सेंट को समझने के लिए लिसनिंग स्किल्स के लिए देख रहे हैं, या फिर केवल एक इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। TED Talks are watched for multiple reasons. People watch them for knowledge, entertainment, improvement in public speaking skills. Keep your objective clear. आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. Why are you listening or watching the TED Talk? Without objective, you will always lose the track, just like people watching English movies and not improving at all. फॉर इंप्रूविंग योर लिसनिंग स्किल्स, फोकस ऑन वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो वर्ड्स पे फोकस कीजिए, फ्रेजेस पे, आइडियाज पे, कीवर्ड्स पे फोकस कीजिए, एम्फेसाइज्ड पॉइंट्स किस तरीके से एम्फेसिस किया जाता है, एंड देन रिपीटेड इन्फॉर्मेशन, इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, उसके हैंड जेस्चर्स पे, फेस जेस्चर्स पे, बॉडी पोस्चर पे, किस तरीके से वो स्पेस को यूज कर रहा है, किस तरीके से मेटा कम्युनिकेशन, स्माइल, आई कॉन्टेक्ट, इन सब चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 2, लिसन विद नो डिस्ट्रैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। व्हेन यू आर वाचिंग द टेड टॉक, कभी कहीं से कोई आवाज लगा रहा है, कभी घर में बच्चे रो रहे हैं, कभी आपको मम्मा आपकी खाने के लिए बुला रही हैं, जस्ट मेक श्योर कि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। उनको पहले से बता दीजिए कि फॉर हाफ एन आवर डोंट डिस्टर्ब मी बिकॉज आई एम इन अ लर्निंग प्रोसेस, प्लीज अंडरस्टैंड। इफ यू डू नॉट टेक इट सीरियसली, nobody will take you seriously, or that process will also not take you seriously. So you need to be serious first of all, right? अगर आप एक बार सीरियस हो जाएंगे और आप सब लोगों को बोल देंगे कि भाई आधे घंटे मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए, believe me guys, your parents, those people who are around you, they always want your benefit. They will never disturb you. Okay? So distraction कभी भी नहीं होना चाहिए. Distraction hamper the listening and understanding process. अगर एक बार distraction हुआ या बीच में आपको पॉज करना पड़ा तो कनेक्शन टूट जाता है, अंडरस्टैंडिंग आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। बिलीव मी, दैट अंडरस्टैंडिंग विल नेवर मैच द सीमलेस अंडरस्टैंडिंग, जब आप उसको सीमलेसली देख रहे हैं या पूरी वीडियो को एक साथ देख रहे हैं। डोंट मल्टीटास्क व्हाइल लिसनिंग, लिसन बाय डिवोटिंग एंटायर सेपरेट टाइम ऑन द लिसनिंग एक्टिविटी। कुछ लोगों की आदत होती है ना, लिसनिंग करते हुए व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं, पास में कोई बुक भी पढ़ी है उसको भी पढ़ रहे हैं, लिसनिंग तो चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। लिसनिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इफ यू रियली वांट टू बिकम एन एक्टिव लिसनर। और अगर आपने पुराने सेशंस देखें तो आपको पता है जब आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं तो आपकी हर एक्टिविटी का जो इफेक्टिवनेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसीलिए लिसनिंग एक्टिविटी करते टाइम या टेड टॉक को सुनते समय कोई भी और एक्टिविटी ना करें, ठीक है। In case you got distracted by some undesirable factor, rewind and listen again. Don't underestimate the importance of missed information during the disturbance. कभी कभी हमें लगता है ना कि हमारा किसी ने आवाज लगाई, हम उधर बात हम सुनने में लग गए, इस बीच में कम से कम 10 से 15 सेकंड का जो कंटेंट था या जो स्पीकिंग थी, सेशन था, वो मिस हो गया। तो हमें लगता है ठीक है कोई बात नहीं, आगे सुन लेते हैं। बट द प्रॉब्लम इज आपको नहीं पता कि वो 10 से 15 सेकंड का जो आपसे मिस हुआ है उसमें कितनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन थी या कौन सा फ्रेज या कौन सी की आइडिया था जिसको आप मिस कर रहे हैं। सो प्लीज डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अगर कोई चीज मिस हो गई है, मेक श्योर दैट यू रिवाइंड। आपकी टेक्नोलॉजी आपके लिए बेनिफिशियल है, आपकी टेक्नोलॉजी का पूरा यूज उठाइए। जब आप रिवाइंड कर सकते हैं तो उसको रिवाइंड कीजिए, उसको री लिसन। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, रिवाइंड अगेन लिसन। अगर तभी भी नहीं आती है, जितनी बार हो सकता है जस्ट लिसन टू इट।
यहाँ पे क्वांटिटी से मैटर नहीं करता है कि आप कितनी टेड टॉक देखते हैं, मैटर ये करता है कि अगर आपने एक टेड टॉक देखी है तो क्या आप उसके वर्बल स्किल्स, नॉन वर्बल स्किल्स, उसके मेटा कम्युनिकेशन, उसके बात करने के तरीके, उसके एक्सेंट, इन सब चीजों से कुछ सीख पाए हैं कि नहीं। जितनी बार आप टेड टॉक को देखेंगे, जितने ऑब्जेक्टिव्स के साथ देखेंगे, आपका मेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके साथ जब आप देखेंगे तब आपको टेड टॉक से बेनिफिट होगा। उसके अलावा वरना तो मैंने बहुत सारे लोगों को टेड टॉक सुनते हुए देखा है बट उनको कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता, किसी को भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। जब तक कोई विजन नहीं है लर्न करने का तो नहीं होगा, राइट? तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट पार्ट। नंबर 3, ऑब्जर्व मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है नॉन वर्बल जेस्चर। मेटा कम्युनिकेशन में आपकी टोन, पिच, पॉजेज, एम्फेसिस, इंटोनेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, हैंड मूवमेंट, स्पेस, ये सब कुछ आता है, राइट? तो अगर आप मेटा कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल स्किल्स को ढंग से समझेंगे या देखने की कोशिश करेंगे तो आपकी लिसनिंग हमेशा ऑगमेंट होती है, आपकी लिसनिंग हमेशा इंप्रूव होती है। आप जो अंडरलाइंग मैसेजेस हैं या हिडन मैसेजेस हैं उनको भी आप समझ पाएंगे। ऑब्जर्विंग मेटा कम्युनिकेशन कैन ऑलवेज क्लैरिफाई एंड ऑगमेंट रिसीव्ड मैसेज। रिसीव्ड मैसेज, अगर आप केवल वर्ड्स को सुनने की कोशिश करेंगे तो मैसेज आपको बहुत लिमिटेड मिलेगा, लेकिन अगर आप नॉन वर्बल जेस्चर्स और मेटा कम्युनिकेशन पे ध्यान देंगे तो आपका मैसेज काफी हद तक एम्पलीफाइड या ऑगमेंटेड होगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। लिसन विद नोटबुक एंड पेन इन हैंड, मेक नोट्स। मैंने क्या बोला था आपसे, आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आपने पिछला सेशन आपने देखा ही होगा नोट टेकिंग के बारे में कि नोट टेकिंग इज नॉट ओनली अबाउट द क्लासरूम। केवल क्लासरूम में ही नोट्स नहीं बनाए जाते। If you just look at any good businessman, they always keep a notebook and pen in their hand. Why? Because they want to take notes every single time. जब भी कभी वो किसी किसी स्पिरिचुअल लीडर को सुन रहे हैं, किसी लाइक बिजनेस लीडर को सुन रहे हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हैं, दे कीप ऑन राइटिंग डाउन लॉट मेनी पॉइंट्स व्हिच कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर देम इन फ्यूचर और इन अपकमिंग टाइम। So please understand, no matter whether you are watching a movie, you are just watching a TED talk or a comedy show, or if a person is a good communicator, he is always a teacher for you. चाहे वो आपको डायरेक्टली सिखा रहा हो कि नहीं सिखा रहा हो, आप हमेशा नोटबुक साथ में लेके बैठिए और अभी कभी उसने कोई ऐसा फ्रेज यूज किया जो आपको नहीं आता, राइट इट डाउन सो दैट यू कैन यूटिलाइज इट द नेक्स्ट टाइम। सो लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ग्रामर के सेशंस ले रहे हो या फिर इंग्लिश स्पीकिंग के सेशंस ले रहे हो। अगर कोई बहुत अच्छा कॉमेडियन है, फॉर एग्जांपल यस्टरडे आई वाज जस्ट वाचिंग अ वीडियो ऑफ वीरदास। वीरदास जो है एक बहुत अच्छा कॉमेडियन है एंड माय गॉड, लाइक ही इज अ वंडरफुल कम्युनिकेटर बॉस, राइट? तो उसके कम्युनिकेशन को देख के आई जस्ट फाउंड आउट अ लॉट मेनी फ्रेजेस, द की फ्रेजेस। ही वाज जस्ट डिलीवरिंग अ कॉमेडी शो इन फ्रंट ऑफ द न्यूयॉर्क रेजिडेंट्स एंड लाइक ही वाज मार्वेलस। तो उस कॉमेडी शो से आई लर्नड अ लॉट मेनी वर्ड्स। So what I'm saying is that if I don't have that notebook and pen with me, of course I will be missing a lot much information. एक notebook और एक pen आपका continuous like friend होना चाहिए. The companion should always be with you. I keep my iPad and my pen with me, so like whenever I'm having information, I keep it noting it down. तो आपके पास भी कम से कम एक नोटबुक और एक पेन हमेशा होना चाहिए जिससे कि आप चीजों को नोट डाउन कर पाए। टेकिंग नोट्स ऑलवेज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग बेटर ड्यूरिंग लिसनिंग। जब आप सुनते हैं, अगर आप नोट्स लेते हैं, कीवर्ड्स को नोट डाउन करते हैं, तो आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। Our conscious memory is very limited and cannot help us in retaining information for more than 30 minutes. If you do not write important points and key ideas immediately, you are prone to forget them before the session ends. आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन सेशन एंड होने के पॉइंट्स तक आप भूल चुके होते हैं। तो अगर आप उसको भूल चुके होंगे तो आपके पूरे के पूरे सेशन को सुनने का मतलब क्या रह जाता है। तो इसीलिए कीवर्ड्स को आप नोट डाउन करते चाहिएगा। कीवर्ड्स आपके टैगिंग आइडियाज की तरह काम करते हैं, यानी वो एक तरीके से इस तरह से काम करते हैं जिनको बोलते हैं ना कि मतलब मार्कर की तरह, कि आपने शुरू के 10 मिनट में जो सुना, 10 मिनट बाद एक कीवर्ड लिख लिया जो कि आपकी उस 10 मिनट की इंफॉर्मेशन को समराइज करता हो। तो जब आप एंड ऑफ द सेशन उस समराइज्ड पॉइंट को पढ़ेंगे तो उससे पहले के 10 मिनट की पूरी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में लाइव हो जाएगी। तो वो टैगिंग पॉइंट्स की तरह काम करते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने कीवर्ड्स को जरूर लिखें, नोट डाउन जरूर करें। डोंट ट्राई टू राइट डाउन एवरीथिंग। सब कुछ लिखने की कोशिश मत करें। आप न्यूज रिपोर्टर नहीं हैं, आप ट्रांसक्राइबर्स नहीं हैं कि आपको पूरे के पूरे लेक्चर को ट्रांसक्राइब करना है। आपको केवल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कीवर्ड्स लिखने हैं। राइट ओनली इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट की आइडियाज। रेलेवेंट होने चाहिए, इंपॉर्टेंट होने चाहिए। प्रैक्टिस इफेक्टिव नोट टेकिंग मेथड्स डिस्कस्ड अर्लियर, राइट? तो जो भी आपके नोट टेकिंग मेथड्स हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, मेक श्योर कि आप उनको अच्छे तरीके से समझें और आप उनको यूटिलाइज करें। नेक्स्ट इज यूज सबटाइटल ऑन ऑफ स्विच। टेड टॉक के अंदर सबटाइटल को ऑन और ऑफ करने का स्विच होता है। तो पहली बार मेरा जो सजेशन है वो टेड टॉक सुनने वालों के लिए, अगर आप अपने आप को इंप्रूव करने के लिए यूज कर रहे हैं टेड टॉक, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले सबटाइटल ऑन करके टेड टॉक को सुनने की कोशिश कीजिए।
वर्ड्स के साथ उनके सबटाइटल्स को, अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप उस सबटाइटल में उसको देख देख के समझ सकते हैं। जब आपको पूरे के पूरे टेड टॉक को आपने सबटाइटल्स के माध्यम से सुन लिया है सबटाइटल देखते हुए, नाउ द नेक्स्ट राउंड शुड बी दैट यू शुड स्विच ऑफ द सबटाइटल्स एंड देन ट्राई टू लिसन टू दैट पर्सन। तो अगर आप अब भी सब कुछ समझ पा रहे हैं, इट मींस यू आर रियली गुड इन अंडरस्टैंडिंग और लिसनिंग। बट अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, देन पॉज इट and try to just switch on the subtitles once again, look at the meaning, look at the word what he is speaking, and then try to understand or then try to speak it in the same way, right? तो उससे क्या होगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन और आपका जो बोलने का तरीका है वो भी इंप्रूव होगा। बिकॉज जो नेटिव लोग होते हैं ना, उनके बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नेटिव लोगों की तरह बोलिए, बट प्रोनाउंसिएशन को सही तरीके से समझने का सबसे सही तरीका यही होता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप नेटिव लोगों को बोलते हुए सुने, right? So that is the most important part. All TED Talks have subtitle which can be turned on and off. If you find it difficult to comprehend the accent flow or of any particular speaker, at first step turn on the subtitles to understand completely. Later try to listen the same talk again with the subtitle turned off. वो जो मैंने बातें बताई वही यहाँ पे लिखी हुई हैं. This will give you clarity regarding your enhanced understanding of the delivered message after the first attempt. Okay. Next is reduce, rephrase, recite and reflect. Reduce, जो भी इंफॉर्मेशन आपने सुनी यहां पे देख लेते हैं. रिड्यूस द इंफॉर्मेशन टू मैक्सिमम 1 पेज बाय रिमूविंग अननेसेसरी डिटेल. आपका सबसे इंपॉर्टेंट फोकस ये होना चाहिए कि जो भी आपने सुना है, चाहे वो 2 घंटे सुना हो, चाहे 4 घंटे सुना हो, चाहे 5 घंटे सुना हो, आप कोशिश कीजिए कि उसको पूरी इंफॉर्मेशन को माइंड मैप के माध्यम से एक पेज पे रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए. उससे क्या होगा, उससे आपका रिवीजन आसान हो पाएगा. नंबर 2, रिफ्रेज द रिड्यूस्ड इंफॉर्मेशन. जो भी आपने इंफॉर्मेशन को रिड्यूस किया है, अब उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए, अपने शब्दों में रिफ्रेज करने की कोशिश कीजिए. रिसाइट द रिफ्रेज इंफॉर्मेशन. जो भी आपने रिफ्रेज किया है, अब उसको बोल बोल के पढ़िए या बोल बोल के उसको खुद अपनी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपके ईयर्स उसको सुन पाए. एंड नंबर 4, रिफ्लेक्ट अपॉन द रिसाइटेड इंफॉर्मेशन. और जो भी आप सुन रहे हैं, जो बोलते हुए आप अपनी बातें को सुन रहे हैं, मेक श्योर कि आप उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करें कि आपको वो बात अच्छे से समझ में आ गई है या फिर उसका रियल टाइम इंप्लीकेशन क्या है. ठीक है. तो जब आप ये चारों स्टेप यूज करते हैं, रिड्यूस, रिफ्रेज, रिसाइट एंड रिफ्लेक्ट, तो आप अपने इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंसर्ट करा देते हैं रेपिटेशन के माध्यम से, एंड दैट इंफॉर्मेशन विल बी लाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम. ओके. सो ये कोड स्कैन करके आप कुछ टेड टॉक्स का यहाँ पे कलेक्शन है जो टेड ने खुद से बनाया हुआ है कि इफ यू रियली वांट टू बिकम अ गुड लिसनर, देन स्कैन दिस कोड एंड जस्ट हैव अ लॉट ऑफ टेड टॉक्स. देयर इज अ लिस्ट ऑफ टेड टॉक्स. उन टेड टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो आप एक अच्छी लिसनिंग एबिलिटी को गेन कर सकते हैं. बट अगेन, ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, नॉट टू एंजॉय द व्यू, नॉट टू एंजॉय व्हाट द स्पीकर इज स्पीकिंग, बट टू लर्न फ्रॉम द स्पीकर. ओके, दैट शुड बी द सोल ऑब्जेक्टिव. इस कोड को स्कैन करके या फिर नोट्स में से इस URL को कॉपी करके आप बेसिकली वहां पे जा सकते हैं और TED.com पे जो उन्होंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं. Okay guys, so I hope you understood the concept, and this was all about improving your listening skills through the TED Talk. So once again, if you have not subscribed the channel, make sure that you subscribe the channel and you hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications related to all the videos which I have been posting or which I will be posting. Those videos which are related to your personality development, communication skills, soft skills, vocabulary, and a lot many things. So thank you so much for reaching this point. And do comment, do subscribe, and do share with your colleagues so that they can also be benefited. And see you in the next video. Have a good day ahead.